traveling in cars. I have already covered most states of India by road. We have also driven our car into Nepal. Here is one more video of mine. So now the time is 7:50 a.m. We started at 3:30 a.m. from home and now we have covered 250 kilometers. We came via State Highway 27. Now going on Nasik Aurangabad Road. Only few bad patches, otherwise road is very good. We saw so many people sitting in a fireplace because it was very cold. Hi! Now the time is exactly 12 noon and now we have reached Madhya Pradesh. This is the first time our car is entering Madhya Pradesh and the roads are very good. We started from Indore and now we are at Bhopal bypass and it's very cold. ट्रिप मैंने पुणे से स्टार्ट किया। मध्य प्रदेश के 4 जगह घूमी, इंदौर, सांची स्तूपा, खजुराहो और ग्वालियर। मध्य प्रदेश बहुत ही खूबसूरत राज्य है जिसमें बहुत कुछ देखने की जगह है। We are going to Khajuraho but we'll stop at Sanchi Stupa in between. It's now just 60 kilometers to Sanchi Stupa and I'm shivering in cold. We started from Indore at 5 o'clock. Now the time is exactly 12 noon and now we have reached Madhya Pradesh. This is the first time our car is entering Madhya Pradesh and the roads are very good. इंदौर भारत के 20 स्मार्ट सिटी में से एक है और इंदौर स्वच्छता में लगातार 4 साल तक 1 नंबर रहा है। मैंने भी ये देखा, सड़क पे कोई कचरा नहीं था, साफ सुथरा और बिल्कुल डस्ट फ्री था। मध्य प्रदेश और खास करके इंदौर के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मवा बाटी इंदौर की बहुत ही स्वादिष्ट एंड रियली डिलीशियस स्वीट है। आप भी ये जरूर ट्राई करना। We came to Pitru Parva Hanuman temple. It is very big and the way that flag is flying is so beautiful. I love that statue with the light effects most. This is a very beautiful temple in Indore. It looks awesome, wonderful. There's no other way to describe it. I love it. It's very bright also. Now the aarti is going on. मुझे पता
पता चला कि इंदौर भारत का एकमात्र शहर है जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दोनों हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये इंदौर की फेमस खजराना गणपति टेम्पल है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। इंदौर भारत की उन चुनिंदा जगह में से है जिसमें मीटर गॉज और ब्रॉड गॉज दोनों रेलवे ट्रैक्स आज भी चालू हैं। Now we are at Khajrana Ganapati Temple, Indore. Siddhi Vinayak Temple. Look, there's a kite over there. Can you see that yellow color? It's flying in the sky. There are so many small temples around this. मैंने इंदौर के बारे में और बातें सुनी। क्या आपको ये मालूम है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी इंदौर में पैदा हुई थी। Down Shiva's temple and up his son's Ganapati temple. ग्रेट सिंगर एंड एक्टर श्री किशोर कुमार जी इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज के स्टूडेंट थे। नरेंद्र हेजवानी हाईएस्ट विकेट टेकर इन सिंगल टेस्ट बिलोंग्स टू इंदौर। Now we are at Sanchi Stupa in Madhya Pradesh. And it's very cold around. I can't stand it. It is the oldest Buddhist monument in India. As you can see, that is Sanchi Stupa. We will go near it and will show you how it is closer. You can see, now we have reached Sanchi Stupa. Now we are going next to the Sanchi Stupa. This is all the information about Sanchi. See, here's some more information about Sanchi Stupa. The Sanchi Stupa was constructed in the honor of Lord Buddha by Emperor Ashoka in 3rd century BC. सांची स्तूपा की ऊंचाई 54 मीटर है। सांची स्तूपा के 4 द्वार हैं। The gates are named as Northern, Southern, Now we have Eastern and Western. Sanchi Stupa. Oh, this is so nice. Very good. आप सांची कैसे पहुंच सकते हैं मैं बताती हूँ। सांची स्तूपा रायसेन शहर से 23 किलोमीटर दूर है। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से 46 किलोमीटर दूर है। The nearest airport for Sanchi Stupa is Bhopal.
There are so many entrances. You can enter into it and take rounds around it. That's an entrance. This is an entrance. There are so many entrances. Now we'll go inside. Oh my gosh, this is so cold. I think it's a little better not to sit on it. 4. भोपाल और रानी कमलापति से सांची के लिए ट्रेन सुविधा भी है। भोपाल और विदिशा से आप सांची के लिए बस भी ले सकते हैं। विदिशा सुषमा स्वराज जी की निर्वाचन मंडली भी था। मैप लगा दो। As you can see, there are lots of goose around, and over here there are so many cute fluffy rabbits. So cute. I love white rabbits. They're so cute and fluffy. Hello. Would you like to make your own YouTube channel? Well, I should ask that to the goose also. They could teach us how to duck walk. Oh my gosh, these two bunnies are so cute. Oh. Bye bye cute little bunny. Bye bye cute little goose. And they have already walked away. No problem. Hello. Oh my gosh, they're eating. We are in Madhya Pradesh, and now from Sanchi Stupa we will be going to Khajuraho. Right onto Vidisha Bypass Road. Continue for 42 kilometers. खजुराहो ये विश्व प्रसिद्ध भारतीय मंदिर चांडेला डायनेस्टी द्वारा 950 और 1050 एडी के बीच में बनाया गया था। Khajuraho temples are noted for their architectural beauty. Most of the temple structures are built in sandstone along with varying shades of pink, buff and yellow. The Archaeological Survey of India has ranked Khajuraho monuments as the best preserved monuments of antiquity. That we have come to Madhya Pradesh. Now we are at the very famous Khajuraho temple.
So this is not a name. It's such a nice temple. Very beautiful gardens are there. My feet are getting very cold. Anywhere I can take a break for my feet. All these temples are more than 1,000 years old. In yesterday's light show, someone told us that since earlier these temples were in the forest, no one was able to destroy it. These were abandoned for many years, but now they were rediscovered. Look at this lion. I'm trying to figure out what it exactly is. I don't know. That was the Lakshman temple. Now we'll go explore other temples and make more videos. One of the greatest temple in India. We have climbed up to the Kandarya Mahadeva temple, and the architectures are astonishing, wonderful and lovely. I don't know any other way to describe it. It's spectacular. As you can see above on top of the entrance, there are some dragon scales, and that's the part I really admire. Let me just take off my shoes. Oh my gosh, just look at it. It's so beautiful.
center. There are such big steps and my feet are getting really cold. Now I'll show you all around the temple. There is a lion again over here. Not sure what it is though exactly. But the side view of the temple is so beautiful. It has so much beauty that you cannot see it all at once. And hey, look, beautiful flowers next to the beautiful temple. I just simply adore those cute little flowers. Jagadambe Temple. We are at Chitragupta Temple, and here you can read the information about this temple. Look, this is one of the mouse from Lord Ganesha's temple. कोण? It's so beautiful. Such wonderful carvings. I wonder how they do it. It's so difficult. And yet there is so much perfection. Jain Museum in Khajuraho. राजा के उनकी रानियों के लिए रेशम के रेशों से झूले डालते थे। ये जगह झूला घर था, 14 रूम। बिकॉज राजा को 8 रानियाँ थी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 रानियाँ अलग अलग थी। तो जब ये झूला घर था तो बहुत सुंदर था। तभी खंभों के ऊपर सोने का प्लेट लगा थे, दीवारों के गेट पे शीशे लगे थे, नीचे मखमली कारपेट थे, दीपक रखने से सुंदर लगता था। अब उस समय जब राजा लोग अपने घर में रहते थे, सारी रानियाँ लोग झूला झूलती थी, राजा बीच में आके बैठ जाते थे, कभी इस रानी को खुश करते थे, कभी उस रानी को खुश करते, सभी रानियों के साथ हंसी मजाक कर चलता था। सारा कमरा शीशा और पर्दे से बना है, लोग इसे शीश महल कहते थे। जब राजा रानी आराम कर रहे थे, पीछे जो गैलरी है, ये 550 साल पहले टाइम बताती है।
क्योंकि तब हमारे पास घड़ियाँ नहीं थी, तो बाहर दासी रखते थे। जैसे कोई मुर्गा बोला, दासी ने सुना वो अंदर आई, घरों के अंदर घुटू करा, इसमें नाच करते थे। तो जो आवाज़ें होती थी छप छप, वो अंदर किताबें रखते थे या पर्दे का कपड़ा था। बाहर गैलरी छोटी खिड़कियाँ है, वेंटिलेशन के लिए लाइट हवा के लिए, ये उनका अपना पुस्तकालय है। आइए यहाँ पर ये सुंदर डिजाइन है, ये डिजाइन जो हम देख रहे हैं, ये अपर एंड में महिलाएं पहनती थी। ये डिजाइन जो है बैंगल, चूड़ी, कंगन के ऊपर होता था। ये सब नेकलेस डिजाइन है। ये पूरा का पूरा सब देखेंगे तो ये सब ज्वेलरी संबंधित डिजाइन है। ये डिजाइन आप देखो, जो महिलाओं के कान के मुद्दे, ये ऊपर सेटों पर क्राउन, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ज्वेलरी से जुड़े हुए हैं। ऊपर नीचे इन सब में मिरर लगे होते थे। रात में लैंप की रोशनी मिरर से गिरती थी, रिफ्लेक्ट होता था, ये बहुत खूबसूरत लगता था। ऊपर आप देखो पीकॉक है एक और ये दो। इस कोने में देखना, ये गोल जो चक्र है, ये सनफ्लावर एक यहाँ और एक वहाँ। ये जो जानवर दिख रहा है, इसका शरीर शेर का है और मुंह हाथी का है। हाथी को पंजे में दवाई को नीचे लोटस फ्लावर, इसको शार्टून बोलते हैं। शार्टून बोले तो इट्स लुक्स लाइक इंडियन ड्रैगन। ये इतना बड़ा था कि हाथी को भी सूट से पटक देता था। तो राजपूत राजा झंडे का सिंबल मानते थे। ये शक्ति का प्रतीक था। राजा जब कोई विशेष त्योहार मनाते थे, हैप्पीनेस का प्रतीक फ्रॉक लगाते थे। और लड़ाई में वृष्टि में सब ठीक ठाक है तो शांति का प्रतीक सनफ्लावर। आइए इस तरफ आइए। राजा बैठने के बाद सोने की छतरी लगाते थे। राजा की जो रानियां होती थी वो इन जालियों के पीछे। तो उस समय राजा जब कोई विशेष निर्णय लेते थे तो 9वीं रानी को इनवाइट करते थे। सारी रानियों, राजा की रानियां इनके पीछे बैठकर संगीत सुनती थी। तो राउंड में 8 जालियां हैं और 8 रानियां अलग अलग बैठे। पढ़ना सिस्टम था, की रानियां संगीत गाती थी। संगीत का रानी को नहीं, अगर कोई संगीत का बजा रहे तो राजा को ऑर्डर करता था। जब ये म्यूजिक रूम है तो इसके ऊपर ये डांडिया डांस के फिगर है। लड़कियां डांस कर रही, हाथों में लकड़ियां पकड़े। ये डांस गुजरात में होता है, लोग गुजराती डांस करते हैं। आजकल हम लोग इसे गरबा कहते हैं, जो भारत के सभी शहरों में होता है। सारा जो पत्थर है ये सैंड स्टोन है। तो जब म्यूजिक रूम था तो इनके ऊपर सोने का प्लेट लगा था, इन दीवारों में शीशा लगा था, नीचे मखमली कारपेट थे तो दीपक रखने से सुंदर लगता था। तो ये मानसिंह बाबर के पहले लोधी के समय था। We are at Gwalior Fort and here this is a very big cannon and this is a place where Rani Lakshmi Bai fought with the Britishers. This is Man Singh Mahal. 9 married, so wife number 9 is lower caste, belong poor family, but she is very beautiful, a brave girl. So Maharaja take married with her and they build separate building for her from downside of the fort. So this fort has been 2 gate. आप लोग जो आए और वाई गेट है, ये अंग्रेजों ने बनाया। इस रास्ते से आप गाड़ी से आते हो। ये किले का पुराना रास्ता है। यहाँ से राजा हाथी पर बैठकर शहर में जाते थे। ये गेट पुराना ग्वालियर में निकला है तो लोग ग्वालियर गेट बोलते हैं। तो राजा की जो 9th वाइफ थी मृगनयनी, उसका महल नीचे ग्वालियर गेट में। ये महल 8 रानियों का है। इस महल में ये पहला टावर नया है। तो 1857 का जो युद्ध हुआ, जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ती ग्वालियर आई तो अंग्रेजों ने बम्बा गेट से पूरा टावर टूट गया, जिसको 1892 में दोबारा रिबिल्ड किया। इसके लिए इसको गुम्बद नहीं है, बाकी सारे पे गुम्बद है। तो आप फर्क देखो, ये नीचे जो क्रोकोडाइल है ना, इसके 2 पैर हैं उभरे हुए, और देखो एक पैर है फ्लैट। ये पत्थर नया है, वो पुराना है। ये बनाना प्लांट है ना, इसमें टाइल्स लगी है, वहाँ देखो डार्क कलर है, पेंटेड, उसमें मीनाकारी वर्क। तो ये टावर 150 ईयर ओल्ड है और ये 500 ईयर ओल्ड। आपने जो फिल्म देखी होगी पॉनियन सिल्वर यस बन करके फिल्म आई है, नहीं, उसमें ये वाला पूरा व्यू आपको दिखाएंगे। और इसमें लुका छुपी जो फिल्म आई थी पहले, उसमें भी यहाँ कार्तिक आर्यन कृतिशरण यहीं से आए। तो ये व्यू महल है इसका जो आता रहता है। तो आप कैमरा दे दो, ये फोटो भी मैं आपको दे दूँ, या बीच में खड़े जाते टाइगर है कॉर्नर है ना, और एकदम लास्ट वाला जो ब्लू कलर है ना, यहाँ एक टैल ऊपर जा रही है, पीछे 2 पैर है, फेस के लिए न्यू एक लायन है जिसके मुंह का कलर हट है, नीचे येलो लाइन में डक है। लेफ्ट वाला नीचे देखे तो ये टॉवर में यू आकार का डिजाइन है, ये 2 क्रोकोडाइल हेड है नीचे, और उनके बीच में लंबा लोटस फ्लावर है। ऊपर हाथी जो है ये हमारे भगवान इंद्र का भी कलर गॉड ऑफ मानसून है। टाइगर गॉडेस दुर्गा का भी कलर सिंबल ऑफ पावर है। येलो लाइन में डक है, गॉडेस सरस्वती जी का भी कलर सिंबल ऑफ एजुकेशन और म्यूजिक है। नीचे क्रोकोडाइल रिवर गॉड गंगा का भी कलर है, और पैरिस सिंबल ऑफ लव को दर्शाते हैं। लाइन को हम लोग देसी भाषा में सिंह बोलते हैं। सारे राजपूत राजे नाम के पीछे सिंह लगाते हैं। तो ये सारे एनिमल और ट्रीज वगैरह हिंदू रिलीजन है, और ये प्योर हिंदू आर्किटेक्चर बिल्डिंग है। ये महल के नीचे जो गुंबद है ना, बच्चे बैठे, ये राजा का पब्लिक ऑडियंस हॉल था, दीवाने आम। राजा लोग यहाँ बैठकर फोटो खींचते थे। तो बीच में टीला है, ये पुराना बारूद खाना, इसमें तोपों के गोले और गन पाउडर रखते थे। साइड में वो नई दीवारें जहाँ लंबे वाले मंत्रियों ने बनाई, वहाँ लड़ाई के समय कर्नर लगाते थे।
तो अभी यहाँ पर एक फोटो करना चाहे तो आपको खड़े हो जाए, मैं ग्रुप फोटो कर देता हूँ, यहाँ पर मत है। बट ये प्योर हिंदू शैली है। इसकी विशेषता क्या है कि आगरा किले में जो कलर है वो टाइल है जो अफगानिस्तान से लाई, जिन्हें हम लोग मोज़ाइक कहते हैं। यहाँ जो कलरिंग है ये सारा मीनाकारी वर्क है। ये वो कलर है जो हम लोग ज्वेलरी में डालते हैं और ये कलर ग्वालियर में ही बना। ये भी ओरिजिनल और 500 साल पुराना है। सेकंड थिंग, जब ये महल बना तो इसके ऊपर जो गोल गुंबद है, इन सभी के ऊपर तांबे के प्लेट थे, हेड के ऊपर सोने का कवर था। ऐसा बाण सिंह ने अपने शासन काल में 9 रानियां रखी, जिसमें 8 रानियां राजपूत थी और राजा महाराजाओं की बेटियां थी, सेम कास्ट थी, महल में ही रहती थी। 9वीं शादी इसने लव मैरिज की। वो रानी गुजर जाति की थी, जिसका एक टीवी सीरियल आया था मृगनैनी। मृगनैनी के लिए इसने अलग महल बनाया जो Now we are in the tomb of Tansin. He was a classical musician. People say that when he starts to sing, it rains. See, all the pigeons which I made fly are sitting on top of the tomb. Hi, this is me Tanya. Please subscribe to my channel, like and share my videos. Thank you for watching. Bye.